Thank God for this new day in our lives. प्रभु का धन्यवाद करते ये नया दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। Like I was watching when the children was speaking about, saying about the word of God, and like one sentence, with the quotes. और जो उन बच्चे जब यहाँ पर मेमोरी वर्स को बता रहे थे कि एक शब्द जो वचन से वो बांट रहे थे यहाँ पे, I was watching certain parents, they were so happy to, see that the children are speaking, this. और मैं जब बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे तो मैं माता पिता को भी देख रहा था कि मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि उनके बच्चे कुछ तो बोल रहे हैं। You know, think about the same thing, when we live our lives, our Father is in heaven is looking at us, the lives that we live. और उसी प्रकार से जब अपना जीवन हमें संसार में दीते हैं और परमेश्वर जो स्वर्ग में वो पिता हमारे जीवन की ओर देखता है। He's so happy when we read his words, we are, with our brothers and sisters, we are praising him. He's so happy about it. जब हम भाई बहन मिलकर उसकी स्तुति करते हैं, साथ में मिलते हैं, उसे देखकर वो बड़ा आनंदित होता है। Like Jesus says, you being evil, you know how to give good gifts to your children. How much more the Heavenly Father? He spoke about the Holy Spirit, but how much more the Heavenly Father will give you Holy Spirit. और जैसे वचन में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली बातें देना जानते हैं, तो क्यों तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें वो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। And when we come to a meeting, it's like be a Sunday or a weekly meeting or like a testimony meeting. और जब हम रविवार को सभा में आते हैं या कोई सप्ताह की मीटिंग होती है, कोई भी सभा में जब हम भाग लेते हैं, God, I now normally will pray, like God will help us to go in that meeting with a need in our hearts. और प्रभु हमारी सहायता करे उस सभा के अंदर भाग लेने के लिए कि हमारी जरूरत को जानते हुए उस सभा में हम भाग को ले सके। We not come to attend a meeting, we come to meet our Father and fulfill our needs. और हम यहाँ पर सभा को अटेंड करने नहीं आते, लेकिन यहाँ पर हमारे जरूरत के स्थान पर हमारे पिता से मिलने आते हैं। We come to like that one need which I have can be spoken by some brother or some sister, और हमारी जो जरूरत है शायद कोई भाई या कोई बहन जो आकर यहाँ पर बांटता है, उसके द्वारा वो हमारी जरूरत पूरी हो As the सकती है। Bible says, we are one body in Christ. When all the members come together, at one day and meet together. और जैसे वचन में लिखा है कि हम एक देह है, कलीसिया मिलकर हम एक साथ मिलकर हम संगति करते हैं। We start the verse in 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय and verse 13. वचन 13। It says, "For by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we are made to drink of one Spirit." पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 वचन का मध्य भाग, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। So we are baptized and we come in one Spirit. हम बपतिस्मा एक लेकर हम एक आत्मा में होकर यहाँ पर मिलते हैं। There's no different spirit for Kiran or different spirit for Santosh or different spirit for Brother Abu, somebody, और यहाँ पर अलग अलग आत्मा नहीं कि मेरे लिए, दूसरे भाई के लिए, अन्य तीसरे भाई के लिए कोई अलग अलग आत्मा नहीं है। We are one. God has given one heart and one mind. और परमेश्वर हम एक है, परमेश्वर ने हमें एक हृदय एक मन को दिया है। When Jesus was there, if you read this verse, John chapter 14. और यूहन्ना 14 के अंदर हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय And verse 16 and 17. 16 और 17। It says, "I'll ask the Father, and He'll give you another helper, that He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him. But you know Him, because He abides with you and will be in you." और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। The two things is when Jesus was going back, He says, "No, when I go, do not be grieved. Like when I go, I'm going to give you a helper." और जब यीशु मसीह संसार से जा रहा था, उसने कहा तुम दुखी न हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजने वाला हूँ, The Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा है। And it says the Spirit of truth. और जो सत्य की आत्मा जिसको कहा जाता है। And it says the world doesn't know about it. You know about it. और वहां लिखा है कि संसार उसको नहीं जानता, न ग्रहण करता है, पर तुम उसको जानते हो। And here the end verse says because he abides with you
and will be in you. और अंतिम भाग 17 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में बना रहेगा। When Jesus was speaking to his disciples, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहा था that time he spoke this words. और उस समय इस वचन से उसने बात किया। That's why the Holy Spirit was with them, but it was not in them. जब वो बात कर रहा था पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके भीतर नहीं था। It was only when Jesus died on the cross and was resurrected again, we were cleansed, and once we were cleansed, then we received the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मरा और पुनरुत्थान हुआ और उसके लहू के द्वारा जब हम साफ किए गए, तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। God gave that Holy Spirit to come and reside in our hearts. और परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया ताकि वो आकर हमारे हृदय में निवास कर सके। So I was thinking, do I God really is that Holy Spirit residing in me? और अपने आप को हम पूछे कि क्या सच में वो पवित्र आत्मा मेरे भीतर निवास करता है? There are two things. One, I can easily bifurcate. Is it there or not? और दो चीजें हैं जिसके द्वारा हम बड़े आसानी से अंतर कर सकते हैं। First is the way, the life I live, पहला कि किस प्रकार का जीवन मैं जीता हूँ, and second is obedience to Christ. और दूसरा यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। It is each one can see our lives and we can judge our own lives. हर व्यक्ति अपने जीवन को जांच सकता है, अपने जीवन की ओर देख सकता है। If I want to live my life according to my will, I don't need the Holy Spirit. और यदि मुझे अपना जीवन अपनी ही इच्छा के अनुसार जीवन जीना है तो मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं है। The verse where Jesus said, everybody calls me Lord, Lord, but your hearts are far away from me. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हर कोई मुझे प्रभु प्रभु तुम कहते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे बहुत दूर है। I can come to church, attend meetings and all that, but does my heart really want to come close to Jesus? और मैं कलीसिया में आ सकता हूँ, सभा को अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन क्या मेरे हृदय में सच में मैं यीशु मसीह के करीब आना चाहता हूँ? Do I really want to live that one life that is given me according to His will? और क्या एक जीवन मात्र जो परमेश्वर ने मुझको दिया है, क्या मैं उसको उसकी ही इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ? That is where I have to see my life. और वहां पर मुझे अपने जीवन को जांचना देखना है। Jesus has not come to in the Bible to come to discourage us or to remove our faults, but He's come to comfort us and to lift us up. और यीशु मसीह हमें निराश करने के लिए, हमारी गलतियां दिखाने के लिए नहीं, पर हमें सांत्वना देने के लिए और हमको उठाने के लिए वो आया है। Holy Spirit also does the same thing. It has not come to humiliate us or say that you are doing something wrong, but He's come to comfort us and uplift us. और पवित्र आत्मा भी उसी मकसद के साथ आया है कि हमें वो अपमानित नहीं करता है, ना हमें वो हमारी गलतियां नहीं, लेकिन हमको उठाना चाहता है, हमको वो सांत्वना देना चाहता है। If you read verse John 16:8, और यूहन्ना 16:8 में हम पढ़ते हैं, he says, and when he comes, when he comes, will convict the world concerning sin, righteousness and judgment. और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Three things is given. First is about sin. तीन बातें यहाँ पे लिखी है। पहला पाप, Second is righteousness, दूसरा धार्मिकता and third is judgment. और तीसरा न्याय के विषय में। This is going to convict us, is going to tell us about, to bring to a place where we understand things. और ये इन तीनों चीजों के अंदर वो हमारे भीतर आकर हमको एहसास या एक बोध को दिलाएगा। We want to let us know how bad sin is. ये बात को जानते हुए कि पाप कितना बुरा है, Know the righteousness of God परमेश्वर की धार्मिकता को जानने के द्वारा, and the judgment of God. और ये परमेश्वर का न्याय। No, it is that it wants to bring that conviction not in the head but in our hearts. और ये न्याय, ये बोध जो एहसास जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में नहीं, लेकिन हमारे हृदय में होता है। Second thing is, the Holy Spirit is given to us by Jesus Christ. दूसरी चीज, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के द्वारा हमको दी गई है। It is not just that we receive it, but it is given by God. और ये ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही ग्रहण किया, लेकिन परमेश्वर द्वारा ये दिया गया है। If you read a verse in John 20, और यूहन्ना 20 के अंदर हम यदि वचन को पढ़े, John 20 and verse 22, उसका 22 वचन, when Jesus comes and meets his disciple, he says, you read verse 22 says, and he said this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. और 22 वचन में यीशु मसीह उनकर आकर कहता है कि पवित्र आत्मा तुम लो।
it says he breathed. It does not given that, no, he just said, और वहां पर उसने कहा नहीं, लेकिन लिखा है कि अपनी श्वास को उनकी ओर फूंका, and because when he gives a breath, it is given as life. और जब वो श्वास हमको वो देता है, वो अपना जीवन स्वयं हमको देता है। Even when God created Adam, और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, he said he puts a breath in his life. और वहां लिखा है कि उसके नथनों के अंदर परमेश्वर ने श्वास को भरा। When Jesus gives us the Holy Spirit, he gives us that new life. जब यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा देता है, वो हमको वो नया जीवन देता है। Second thing is about assurance. और दूसरी चीज जो है वो आश्वासन या फिर निश्चय जो हमको होता है। You know, the Holy Spirit gives us assurance of our lives. और पवित्र आत्मा हमको एक निश्चय खातरी देता है जीवन के बारे में। You know, if you read verse Romans 8:16, और रोमियो 8:16 को यदि हम पढ़े, and it says, and the Spirit Himself speaks to our spirits and makes us sure that we are the children of God. रोमियो 8:16, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। You know, it keeps us closer with God. और वो हमें और परमेश्वर के नजदीक रखता है। You know, in a Jewish wedding, normally a Jewish wedding used to take 1 year. और एक यहूदी जो एक विवाह जो होता है उसको एक साल लगता है उस विवाह को होने में। The boys side, some parent comes and girl they come and meet, and you know the marriage is fixed. और लड़के और लड़की दोनों के जो माता पिता उनकी ओर से आते हैं और वहाँ पर विवाह का वहाँ पर निर्णय लिया जाता है, फिक्स होता है। And that marriage takes after 1 year. और वो विवाह जो एक साल के बाद फिर होता है। In that 1 year, the groom goes back to build his own house. और वो समय के बाद जब शादी निर्णय होता है, उसके बाद जो दुल्हा जाता है और अपने घर को उस एक साल में बनाता है। And the girl is taught by her mother how to please her husband. और उस एक साल के अंदर उस लड़की को माता के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसे अपने पति को वो प्रसन्न कर सकती है। By making food or you know learning certain things. So the mother trains the daughter. और माता जो है उसको खाना बनाना, घर के कामकाज या सारी चीज़ों को वो एक उसको शिक्षा या उसको एक ट्रेनिंग को देती है। Here we are married to Christ. और यहाँ पर हमारा विवाह मसीह के साथ हुआ When है। Jesus will, I go back. My father has many mansions. I go back, no, to make a place for you. और यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए घर को तैयार करता हूँ। He has sent the Holy Spirit to you know help us. और उसने अपना पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है, हमारी मदद करने के लिए, To teach us. हमको सिखाने के लिए, You know, teach us how to live a life that is pleasing to God. और कैसे हम ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। After that full 1 year, when that girl is trained, then that marriage takes place. The same thing, we have that one life given by God. When we are baptized, we have the Holy Spirit. The Holy Spirit leads us, trains us. It shows us what the right path, and it brings us near to Christ. और एक साल का समय जब होता है तो जो लड़की होती है वो पूरी तरह से तैयार की जाती है उसकी मम्मी के द्वारा, ताकि सारे कामों को सिखा सके। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमको हमारा एक जीवन जो हमको मिला है उस पूरे जीवन भर में हमको सिखाता है, तैयार करता है यीशु मसीह के साथ, उसके साथ रहने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। If you read verse in John 16 और यूहन्ना 16 and verse 13. यूहन्ना 16 उसका 13। But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak, and he'll disclose to you what is to come. यूहन्ना 16:13। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुमको बताएगा। First, it says, is the Spirit of truth. और पहली चीज यहाँ पे लिखा है कि वो सत्य का आत्मा है। Second, it says, he'll guide you. दूसरी चीज वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा Guide you in all the truth. और सारे सत्य के अंदर तुम्हारी अगुवाई करेगा। The third, it says, he will not speak of his own initiative, something that comes from the Holy Spirit, but he'll speak what that comes from the Father. और यहाँ पे तीसरी बात लिखा है कि वो अपनी ओर से जो है वो अपनी ओर से सारी बातें नहीं कहेगा, पर पिता की ओर से जो आता है वही बातें कहेगा। And lastly, it says, he will disclose to you what is to come. और अंत में वो कहता है कि वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा या प्रकट करेगा।
There's one more verse in 2 Corinthians 3:17, दूसरा कुरिन्थियों 3:17, 17 and 18. 3:18। It says, "The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." 2 Corinthians. So, दूसरा कुरिन्थियों 3:17। 17 प्रभु and 18. आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। And first, if you read that first verse, like that first line is the Lord and the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. और वहां लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। God has given us a free, a life full of freedom. It is not, taken a whip or going to, convict us and everything. और परमेश्वर ने हमें एक आजादी का, स्वतंत्रता का जीवन दिया है। वो ऐसा नहीं कि चाबुक लेकर हमारे पीछे पड़ जाए, पर एक आजादी उसने हमको दिया हुआ है। He has given us a free will to choose. और उसने हमें एक बहुत ही मुक्त इच्छा शक्ति दिया है ताकि हम चुनाव कर सके। But when we choose a life from God, there is freedom in that life. और जब हम परमेश्वर के जीवन का चुनाव करते हैं तब उसमें आजादी या स्वतंत्रता होती है। If you read it further, it says, "And our faces are not covered. We shall show the Lord's glory, and we being changed to be like Him." और वहां पे 18 वचन में लिखा है कि जब हम उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप हम पर प्रकट होता है, और जब प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And this change brings, in us, brings more and more glory. और ये बदलाव हमारे अंदर और अधिक महिमा को लेकर आता है। And this change comes from the Lord, who is the Spirit. और ये बदलाव परमेश्वर की ओर से आता है जो एक आत्मा है। You know, the Spirit keeps working in us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता रहता है It brings glory to God. और वो परमेश्वर को महिमा देता है। And if you read that the earlier verse of it, it's done what the God will is. The same thing happens in us. और वही करता है जो परमेश्वर की इच्छा है, वही कार्य को हमारे जीवन के अंदर वो करता है। So, like all these things, happening in our lives, we learning certain things, God changing our lives. But at present, I've read all these things. There are many more verses. If you go to think about the Holy Spirit, there are number of verses, 100 verses, 200 verses are there. और जब हम इस बात को सीख रहे हैं या इस बात के बदलाव के बारे में हम सब लोग इस बारे में जान रहे हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत सारे वचन लिखे हैं, सैकड़ों वचन शायद उसमें हम पढ़ सकते हैं। We pray, like I was can say pray that God anoint me with the Holy Spirit, afresh. Let the Holy Spirit be with me. और हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से और ज्यादा अभिषेक कर, मुझे भर दे पवित्र आत्मा से। But do I really see in my heart that God? Do I really leave that Holy? Do I really cry from my heart for the Holy Spirit, or by just my mouth speaks out need of the Holy और Spirit? यदि सच में हम अपने आप को जांचें तो क्या हम सच में केवल मुख से उसको बोलते हैं या अपने हृदय में एक पुकार हमारे अंदर है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की? God has not given us just this Holy Spirit. He has given us a power to in this life that we can become victorious. और पवित्र आत्मा ही नहीं दिया लेकिन एक सामर्थ हमको दिया गया है जिससे कि संसार में हम जय को पा सके। He doesn't want us to be a failure, but he wants us his children. Like I was saying, like one child speaking a verse and the parent is so happy. Think about God. He's given the Holy Spirit for us to be victorious. He wants us to pass with full marks. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम असफल व्यक्ति हो, लेकिन जैसे माता पिता यहाँ पर आनंदित हो रहे थे वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम सारे अंकों के साथ पास हो सके उन सारी बातों में। And he wants us to be ready for him. और वो चाहता है कि हम उसके लिए तैयार हो सके। But am I willing to be ready? लेकिन क्या मेरी इच्छा है कि मैं तैयार हो सकूं? And I don't think about others, but while reading all these things, it was coming to my heart. God, I've read all these things. I might go and share, but is it there in my life? और मैं सोच रहा था कि प्रभु मैंने सारी बातें ये पढ़ी है, जानता हूँ, लेकिन मैं वहां पर बांट भी सकता हूँ, लेकिन क्या मेरे हृदय के अंदर, मेरे जीवन के अंदर ये सच में ये बातें हैं? If even you read in Galatians 5:22-23, it speaks about the fruit of the spirits. और गलातियों की पत्री 5:22-23 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा है। It says, the verse 22 and 23 says, "But the fruit of the spirits is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control." और वहां लिखा है पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, नम्रता और संयम है। So,
am I really wanting all these things in my life, this fruit of the spirits? और क्या सच में वास्तविकता में ये पवित्र आत्मा के जो फल है मेरे जीवन के अंदर उसकी इच्छा या चाहत को मैं रखता हूँ? Patience with not just with me, but patience with all my brothers and sisters, with my say parents at home or with my colleagues in the office. और यहाँ पे धीरज के बारे में लिखा है कि मेरे भाई और बहनों के साथ धीरज, मेरे सहकर्मियों के साथ धीरज, घर के अंदर माता पिता के साथ धीरज के बारे में, Kindness, same thing. और दया दिखाना उसी प्रकार से, Love, loving others as Christ loved. Do I have that love in me? और वो प्रेम जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया वैसा प्रेम मैं औरों को कर सकूं, क्या मेरे पास वो प्रेम है? That gentleness to speak. और एक कोमलता लोगों के साथ बात करने के संबंध में। All these things come from the Holy Spirit, but do I really need it? और ये सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती है, लेकिन क्या मेरी आवश्यकता ये बातें है? If all these things, in our lives is the working of the Holy Spirit. If I submit my life to God, and if I go to Him, God, you can change my life, and I need this, then God can give me the Holy Spirit. If I really want to marry Christ, और यदि हम then my पवित्र training will start. If I don't want to marry, if I want to go somewhere else, I want to go with the world, I can't marry Christ. और यदि सच में हम वास्तविकता में पवित्र आत्मा के उस काम को हमारे जीवन के अंदर चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आकर हमको बदले, और सच में हम उस यीशु मसीह से विवाह करना चाहते हैं और उसके अनुसार उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। Even in the Bible, if you read, it speaks about lying to the Holy Spirit. Lying to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोलने के संबंध में भी वचन में लिखा है। If you read about in Acts 5, और 3, प्रेरितों के काम 5 यदि हम पढ़े, it speaks about Ananias and Sapphira. हनन्याह और सफीरा के बारे में लिखा है। It says they had a land and they sold and they kept something with them. और कुछ जमीन को उसने बेच दिया, उन्होंने बेचा, और कुछ उस पैसों का भाग जो है उन्होंने अपने पास रखा था। And when they gave that, they said we are giving wholeheartedly, but they kept something और to कुछ themselves. वो पैसा जब वो प्रेरितों के पास लेकर आए, ये कहते हुए कि उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन वास्तव में कुछ पैसों का भाग उन्होंने अपने लिए बचा के रखा था। But here Peter doesn't speak, you told lies to me. और पतरस यहाँ पर ये नहीं कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं कहता है पतरस। But you read that verse, Acts 5:3. और पतरस कहता है प्रेरितों के काम 5:3 अध्याय के अंदर, But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली है to lie to the Holy Spirit and keep back some of the price of the land? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के कुछ दाम में से कुछ अपने लिए रख छोड़े। Lying, I can say like this is speaks of Ananias, but if I compare my life, God, I love you with all my heart, but my little heart is somewhere in the world. और हम परमेश्वर के आगे अपने शब्दों से तो कहते प्रभु अपने हृदय से पूरे मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपना हृदय हमने संसार में कहीं ना कहीं रख दिया है। Same way I am lying to God and lying to the Holy Spirit. और उसी प्रकार परमेश्वर और पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोलता हूँ। There was verse in Ephesians 4:30. He speaks about grieving the Holy Spirit. और इफिसियों 4:30 के अंदर पवित्र आत्मा को खेदित करने के बारे में लिखा है। I think it is 4:30. Ephesians 4:30. इफिसियों 4:30 में लिखा है, Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। So now, the Holy Spirit is just not something, but it is a part of our life. और वो एक अलग नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का एक भाग या अंग है पवित्र आत्मा। It can help us to grow. वो हमें उन्नति या बढ़ने के लिए हमारी मदद कर सकता है। He can help us to come more closer to Christ. यीशु मसीह की और नजदीक आने में हमारी सहायता कर सकता है। He can show us Christ. हमको मसीह को प्रकट कर सकता है, दिखा सकता है। He can also that voice of the Holy Spirit is soft and gentle. और पवित्र आत्मा का जो वो आवाज जो है बहुत ही सॉफ्ट या कोमल है। It is not that harsh voice, but it is soft voice that speak to us. और बहुत ही कठोर या बड़े आवाज से नहीं, लेकिन बहुत ही कोमल आवाज से वो हमसे बात करता है। Who wants us to come closer to Christ, who wants us to change. और वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के करीब आए, वो चाहता है कि हम बदले। He will correct us if we submit our lives. और यदि हम अपना जीवन उसको सौंपते हैं तो हमारे जीवन को वो सुधारेगा। There's one more verse in Acts 1:8. और हम प्रेरितों के काम 1:8 It speaks about witnessing,
और यहाँ पर गवाह बनने के बारे में लिखा गया है। If you read 1:8, it says, "But when you will receive the power, when the Holy Spirit has come upon you, then you shall be my witnesses, both in Jerusalem and Judea and Samaria and even the remote parts of the earth." परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Speaking also about Christ is not easy. You can't speak about with our own like mind or this thing. और हम अपने यहाँ पर अपने अपने दिमाग से या अपने शब्दों से बात कर सकते हैं Not my own intelligence. और अपने खुद के ज्ञान के द्वारा या अपने चतुरता के द्वारा। But it says, if when the Holy Spirit comes, then you'll receive the power. और यहाँ पे लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, Then you can witness in तब उसके बाद तुम मेरे गवाह बन सकते हो। that it says about Samaria, Judah, and the remotest part of the earth, anywhere. और वहाँ लिखा है कि यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। I think last time we were sharing about Stephen. और अंत में स्तिफनुस के बारे में, I think while they were serving the widows, I think I shared last time, they wanted to select certain people. और वहाँ पर जो विधवाओं की वो जो सेवा कर रहे थे उनको बांट रहे थे, तब कुछ लोगों का चुनाव वो करना चाह रहे थे। For the division between the Greek widows and the Jews widows. और वहाँ पर कुछ अंतर हो गया था, जो यहूदी विधवाएं थी या यूनानी विधवा थी, उनके बीच में एक भेदभाव या अंतर हुआ था। So the serving was issue, but when they planned to do, they planned the people who were anointed with the Holy Spirit to serve the food. और जब उन्होंने निर्णय लिया कि इस भेदभाव को मिटाने के लिए उनको वो बांटने के लिए कुछ लोगों की जरूरत, ऐसे लोगों को उसने चाहा कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो इस भोजन को बांट सके, Because they will not make any difference in the people, ताकि वो लोगों के अंदर कोई भेदभाव या अंतर नहीं करेंगे। because it will be done by the Spirit, not by you. और क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा नहीं पर पवित्र आत्मा के द्वारा तब किया जाएगा। God has put everything. He has detailed our life. और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन के हर विवरण को रखता है। So it's that thing. Do I really am asking God for the Holy Spirit? और क्या हम वास्तव में सच में हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के संबंध में उससे पवित्र आत्मा को मांगते हैं? If as one example, if I am with Jesus, and there are certain things that are troubling me, what will I do? और ये ऐसी बात है, या ये कल्पना करके कि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ और कुछ विचार है, कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही, तो मैं क्या करूंगा तब? I'll pour out my heart unto Him. तो यीशु मसीह जो मेरे साथ है, मैं अपना हृदय पूरी तरह से उसके पास उंडेल दूंगा। I'll speak to Him about weaknesses. और मेरे कमजोरी के बारे में उससे बात करूंगा। I'll speak to Him about my needs. और मेरी जरूरत के बारे में उससे बात करूंगा। And He can see me. He can fulfill my desires. और वो मुझको जानता है और मेरी हर इच्छा को वो पूरा कर सकता है। This person who was his son was having that evil spirit. और जो बाइबल के अंदर जो व्यक्ति जो उसके बेटे को अंदर दुष्ट आत्मा उसको सताता था, And he could not be removed. और उसको वो निकाल नहीं पा रहा था कोई। And he asked the father, "Do you believe I can do this?" यीशु मसीह उस पिता से पूछता, क्या तू विश्वास करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? Yes, he said, "I believe. Help my unbelief." और वो उत्तर देता है कि मैं विश्वास तो करता हूँ, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। When I come here, God, I want to see my life. I want to see my follies, and I come to you that you can change my life. प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, प्रभु मेरी मूर्खता को, मेरी कमजोरियों को देखना चाहता हूँ, तेरे नजदीक में आना चाहता हूँ। I need the Holy Spirit. I see that need in my life. Many areas I fall. प्रभु बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर मैं आज भी गिरता हूं प्रभु, और मुझे मेरे जीवन के अंदर वास्तविकता में पवित्र आत्मा की जरूरत है। I see my self life coming in between in many areas where I have to follow you. और जहां प्रभु मुझे तेरा अनुसरण करना होता है, उन क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी रीत से प्रभु मेरा स्वयं का जीवन बीच में बाधा रूप बन जाता है। Lord, I don't see that love in my heart. मेरे हृदय के अंदर वो प्रेम नहीं देख पाता हूँ। That will to serve you. Sometimes God, I don't see that. और प्रभु तेरी सेवा करने की वो इच्छा प्रभु मेरे अंदर नहीं आती है। God, I need all those things, and I need your Holy Spirit. प्रभु ये सारी बातें मेरी जरूरत मुझको चाहिए, और मुझे पवित्र आत्मा की तेरी आवश्यकता है। Then God can do a work in me. तब प्रभु हमारे जीवन के अंदर एक काम को कर सकता है। Then I can get that life of freedom.
और तब वो आजादी या स्वतंत्रता का जीवन मुझे प्राप्त होगा। Not freedom from, do many things, but freedom from sin, freedom from self-life. और यहाँ पर स्वतंत्रता जो मैं करना चाहता हूँ उसको करने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं के जीवन से पाप से आजादी वो देगा। May God help us that each day when we come, we can go to Him with confidence. प्रतिदिन ऐसा होने पाए कि उसके पास हम बड़े हियाव के साथ जाने पाए, We can speak to Him. उससे हम बात करने पाए, We can have a fellowship with Him. ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। We heard, like Enoch walked with God. Enoch walked with God. हम जानते हैं कि हनोक जो है परमेश्वर के साथ चला। You can say like I also can. I daily walk with God. I don't walk with the world, but I walk with God. और वैसे हम भी संसार के साथ नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ चल That too सके, in the spirit and truth. और उसके साथ आत्मा और सच्चाई के अंदर हम चल सके। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।